Hello everyone. In today's video, we have to discuss about the consistency limits of soil. So, what do you mean by consistency limits, and what is this importance in the soil characteristics and its index properties? So, consistency means the representation of relative is with which we can easily soil deform. The soil can be deformed. That means the relative is with which the soil can be deformed. Or in general sentence, the consistency represent the stage of soil, or it is a relative is by which we can by which the soil can be deformed in different stage. So this parameters is widely used in fine grain soil as a coarser grain soil. So it is a basically properties of fine grain soil. So this terms is mainly used for the clayly soil, as I tell you, and this is related to the water content. Consistency limits is means the different stages, and it is measured by water content. That means the different level of water content at different stages, and the how it can be changed in the water content consistently. So this is also known as the Atterberg limit, and Atterberg limit is also classified. Atterberg stages is classified from the four different stages. First one is the solid, with semi-solid, then plastic and liquid stage. So this four stages is mentioned here. This is represented by this particular graph. So this graph of x and y axis, x y plane, in which the x is denoted as a water content and y axis is denoted as a volume. So you may see here the solid phase, that means this portion. So in this portion the water content is Ws. Ws represented as the water content at solid stage. This is also called the shrinkage limit. Ws is the shrinkage limit, Wp is a plastic limit, and Wl is a liquid limit. There are the three different limits, and there are four different stages. So if I ask about the Atterberg stages, so the four stage: solid, semi-solid, plastic, and liquid. And I ask about Atterberg limits or consistency limits. So there are the three limits: liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit. So solid, in this diagram you see the volume of the soil is represented as V dry. ठीक है, that means solid stage, that means there are no water in, water content is 0. So the volume of the soil is not 0, volume of the soil is Vs. If water content is Ws, the volume of the soil is V dry. That means there are no effect on water content on volume of the soil within the solid stage. So at a shrinkage limit in the definition form, the shrinkage limit are the limit at which the maximum water content by which further reduction of water content do not change the volume of the particular soil. या ऐसे हम जनरल भाषा में समझे तो श्रिंकेज लिमिट जो WS होता है, वहाँ से यदि आप डेट मीन 0 से लेकर WS लिमिट तक आप यदि वाटर कंटेंट को प्लस माइनस करते हैं तो आपका जो वॉल्यूम है सैंपल का वो चेंज नहीं होगा, वो ड्राई पोजीशन में रहेगा. ये आप इस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसके बाद आप देखेंगे कि एक लीनियरली ग्राफ हमें मिल रहा है. जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका जो है वॉल्यूम भी सॉइल का बढ़ता जा रहा है. ठीक है, और लिक्विड लिमिट पे हाईएस्ट आपको वॉल्यूम अचीव होता है. तो ये चार शेड है, स्टेजेस है: सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक, लिक्विड. ठीक है, एक छोटा सा एक ग्राफ यहाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया हुआ है जो आपने पढ़ा होगा मटेरियल्स में, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि कोई मटेरियल डक्टाइल है
तो डक्टिलिटी कब आती है? जब स्ट्रेन बढ़ती जाती है और स्ट्रेस आपकी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है नॉर्मली कि ये ग्राफ भी इस तरह से यहाँ पे यूनिफॉर्मली आपका वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है और आपका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स आपकी स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है। वॉल्यूम इंक्रीज दैट मीन स्ट्रेन इंक्रीज। ओके, वाटर कंटेंट इज डायरेक्टली रिलेवेंट विद वाटर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपकी कांस्टेंट है बट आपका वॉल्यूम, दैट मीन मटेरियल्स थोड़ा सा डक्टाइल होता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इस ग्राफ से यदि हम कुछ लिनियर ट्रेंगुलर लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे हम इस तरह के कुछ रिलेशन मिलेंगे। वी एल माइनस वी पी अपॉन में डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, लॉ ऑफ सिमिलर ट्रेंगल से। ठीक है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी अपॉन में डब्ल्यू वी पी वी एल माइनस वी पी, उसी के हिसाब से वी पी माइनस वी ड्रा इक्वल टू डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू एस। ठीक है, डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस। तो ये कुछ रिलेशन है। चलिए हम आगे एक एक डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आपकी नेचुरली सॉइल अवेलेबल है वो उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो हमेशा लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में ही रहेगा। ठीक है, नेचुरली यदि मोस्ट कंडीशन में सॉइल है तो मोस्टली सॉइल जो है वो लिक्विड और प्लास्टिक के बीच में होगी, वो श्रिंकेज लिमिट पे नहीं होगी। श्रिंकेज तो बहुत ड्राई सिचुएशन में हो जाता है जब वो बहुत हीट पे है। नेचुरली में तो डब्ल्यू पी के रिस्पेक्ट में उसमें वाटर कंटेंट अवेलेबल रहता है। ओके, तो अब आप इनको अच्छे से देखिएगा। लिक्विड लिमिट क्या होती है? लिक्विड लिमिट की डेफिनेशन यदि हम पूछें तो मिनिमम वाटर कंटेंट एज विच सॉइल हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो इज लाइक आल्सो कॉल्ड लिक्विड लिमिट ऑफ वाटर। मतलब इतना पानी सॉइल सैंपल में हो कि जिसके बाद यदि आप उस पर्टिकुलर पानी में जो आपकी सॉइल है वो पानी की तरह फ्लो करने लगे, वाटर की तरह फ्लो करने लगे, लिक्विड की तरह फ्लो करने लगे, तो उसे कहते हैं लिक्विड लिमिट। मतलब उसकी शियर इंटरनल जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो इंटरनल शियर स्ट्रेंथ है वो सारी की सारी स्ट्रेंथ जो है वो लॉस कर दे, तो वो किसी भी रेजिस्टेंस उसमें जीरो हो जाएगा और वो पानी की तरह बहने लगेगी। तो ये स्टेज कहलाती है लिक्विड लिमिट। मतलब इतना पानी है कि वो पानी की तरह फ्लोएबल हो जाए। ठीक है, और यदि इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं द वाटर कंटेंट बिटवीन दी लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट। डेट मीन ये प्लास्टिक स्टेज है आपकी पूरी, ये बाउंड्री है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो वो होगा, इनके बीच का जो मतलब प्लास्टिक स्टेज, ये प्लास्टिक स्टेज है आपकी और ये लिक्विड स्टेज है सपोज यहाँ पे कहीं पे, ये तो इनफाइनाइट। तो इन दोनों के बीच का जो वाटर कंटेंट होगा वो होगा आपका लिक्विड लिमिट। ठीक है, सपोज लिक्विड लिमिट की रेंज है 200% और इसकी रेंज है 100%। तो इनके बीच का जो ये कंटेंट है लिक्विड लिमिट से इसकी सारी। ठीक है, और यदि इसे हम देखें तो एक इसकी डेफिनेशन होगी टूल के हिसाब से, वो हम आगे देखेंगे। अब जैसा मैंने कहा कि शियर स्ट्रेन यहाँ पे लॉस हो जाती है तो इसकी शियर स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, यहाँ पे 2.7 kPa के समथिंग होगी या फिर किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के आसपास होगी। लिक्विड लिमिट इज़ फाउंड आउट किस किस टूल से हम इसे कर सकते हैं? तो दो तरह के टूल जनरली यूज़ होते हैं। एक होता है कैसेग्रेंड्रेस टूल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा होता है कोन पेनिट्रेशन यूज़। ठीक है, तो कैसेग्रेंड्रे टूल में क्या होता है, ये इसका डायग्राम है लेफ्ट में। ये एक तरह से टूल होता है, आपने यदि जियोटेक लैब में कभी आए हो तो आपने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट देखा होगा। नीचे एक रबड़ का ब्लॉक होता है और ऊपर एक ब्रास का जो होता है एक ऐसा होलो बाउल होता है जो कि उससे अटैच्ड होता है और यहाँ पे एक हैंडल होता है। ये हैंडल क्या करता है, इसको रोटेट करता है। तो यहाँ पे इसकी काउंटिंग होती है, इस जगह पे कितने राउंड हुए यहाँ पे आपको पता लग जाता है। जितना बार इसे रोटेट करेंगे तो उतना काउंटिंग हो जाएगी। और यहाँ पे आप क्या करते हो, सैंपल फिल करते हो। सैंपल फिल करने के बाद एक ग्रूव होता है, एक हमारे पास सैंपलर होता है जो इस तरह से होता है, ये भी ब्रास का होता है। तो इससे आप क्या करते हो, इससे आप इसमें कट लगाते हो ऐसे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें एक वो हो जाती है
ठीक है, एक कट बन जाता है बीच में से, एक सेक्शन बन जाता है इस टूल से। तो इसे हम कैसे करते हैं ये आप देखिए, किस किस तरह से परफॉर्म होता है। हम क्या करेंगे कि इसमें पानी को हम मिलाते जाएंगे सॉइल में। रेंडमली आपने सॉइल ली, उसको सीव करा 425 माइक्रोन से, और उसे ओवन ड्राई करने के बाद उसे हमने ले ली। उसमें हम रेंडमली पानी मिलाया, हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें पेस्ट कर दिया और इसकी काउंटिंग करी। तो इसमें जो नीचे के ये जो कट होने के ग्रूव बना हुआ है, ये ग्रूव कुछ 2 mm की साइज का जो ग्रुप है, जब ये आपस में मिल जाता है लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास, ये 2 mm लिखा है जबकि ये 2 सेंटीमीटर है। जब ये आपस में मिल जाता है तो यहाँ पर इसे हम लिक्विड लिमिट कहते हैं। मतलब हम उसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज यहाँ पे काउंट कर लेंगे। मतलब इसे आप रोटेट करते जा रहे हैं और ये जो पोर्शन है धीरे धीरे जब ये स्टक होगा उस पर्टिकुलर रबड़ बेड पे, ऊपर नीचे अप डाउन, ये पोर्शन अप डाउन इस तरह से इस पर टकराएगा। ये सपोज इसको इस तरह से समझिए, ये आपका एक रोड है, ये यहाँ पे आपकी सॉइल भरी हुई है, तो ये इस पर हर बार ऊपर नीचे होगा। तो जब ये बार बार अप डाउन होगा तो ये जो इसके अंदर जो डायनामिक प्रेशर जा रहा है सॉइल में, तो वो उससे जो पार्टिकल्स है, जो ग्रूव है, जो सॉइल है रिमेनिंग, वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेगी। तो जब 2 सेंटीमीटर के आसपास वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर लेंथ में, लाइक 2 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब इस तरह से हम मेज़र करेंगे। ये यहाँ से ये जैसे ग्रुप कटा हुआ है आपका, इस तरह से होलो ग्रुप कटा है, तो ये 2 सेंटीमीटर हम यहाँ से मेजर करेंगे। कहीं से भी 2 सेंटीमीटर लगभग मैच हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। सपोज़ ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर का पोर्शन यदि मिल जाता है आपस में कहीं से भी, इधर से, बीच में से, लाइट्स लास्ट में से, तो वो हम वहाँ पर स्टॉप करके नंबर ऑफ ब्लोस हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि कितने ब्लोस पे ये हुआ है। तो अब हमारी लिक्विड लिमिट क्या हुई कि एग्जैक्ट 25 ब्लोस पर आपके जो ग्रुप्स है वो एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिल जाए, ठीक है, तो वो हमारी कहलाती है लिक्विड लिमिट। यदि इसको टेक्निकली हम पढ़े तो नंबर ऑफ ब्लोस रिक्वायर्ड टू क्लोज द 20 mm ग्रूव्स इज नोटेड, वाटर कंटेन एट विच 25 ब्लोस क्लोज टू द ग्रूव इज कॉल्ड द लिक्विड लिमिट। मतलब ऐसे ग्रुप जहाँ पर जो क्लोज हो जाते हैं और एग्जैक्ट 25 पे यदि आ जाता है तो वो कहलाता है लिक्विड लिमिट। बट प्रैक्टिकली 25 ब्लोज पे एग्जैक्टली उसे मिलाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 25 mm से ऊपर की साइज में हम 2 या 3 ब्लोज नोट कर लेते हैं, और इस तरह से 25 से ज़्यादा हम 2-3 ब्लोज नोट कर लेते हैं। जैसे सपोज हमने 12, 15, 20, 25, 28, 30, 35 या 40 इस तरह से हमने 5-6 रेंज ले ली। उसके बाद हम एक ग्राफ बनाएंगे वाटर कंटेंट जिसमें वाई एक्सिस पे होगा, और नंबर ऑफ ब्लोज जो होंगे वो एक्स एक्सिस में होंगे लॉगरिथमिक में स्केल में, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा तो इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, जो एग्जैक्ट 25 नंबर ऑफ ब्लोज है, नंबर ऑफ ब्लोज पे कितना वाटर कंटेंट आपका आ रहा है ये आप नोट कर लेंगे, और इसे आप हम कहेंगे लिक्विड लिमिट ऑफ पर्टिकुलर सॉइल, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो इसका एक फार्मूला है। अच्छा, यह एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस ग्राफ में जो ये फ्लो बन रहा है ना, ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ का जो स्लोप है इसे हम कहते हैं फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है फ्लो इंडेक्स क्या होता है, तो फ्लो इंडेक्स इज द स्लोप ऑफ पर्टिकुलर ग्राफ। और आप जानते हैं कि किसी भी ग्राफ का वाई एक्स यदि है तो इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकालेंगे, टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स इज ए स्लोप, ठीक है। तो वाई क्या है आपका W1 माइनस W2, हाँ, और एक्स क्या हुआ लॉग N2 माइनस N1। यहाँ आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करिएगा जो मैं आपको मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, कि इस ग्राफ से आपको क्या पता लग रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्लोज आपके बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका वाटर कंटेंट आपका कम होता जा रहा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी
आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि क्या होती है। वाटर कंटेंट बनने के साथ साथ में सॉइल का जो नेचर है, उसके डिफॉर्म होने की जो कैपेबिलिटी है वो चेंज हो रही है, उसकी कंसिस्टेंसी, उसका नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले वो थोड़ा हार्ड था, फिर पानी मिला तो थोड़ा लूज़ हुआ, फिर और लूज़ हुआ, फिर और सॉफ्ट हुआ, फिर वो लिक्विड की तरफ फ्लो करने लगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंसिस्टेंसी होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि डिफरेंट कंसिस्टेंसीज में आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक ये ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है, ये मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया। हाँ, फ्लो इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे जैसे आपका फ्लो इंडेक्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसका स्लोप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, ये आपको इस ग्राफ से पता लगेगा। सपोज ये ग्राफ 1 है जिसमें लार्जर शियर स्ट्रेंथ है क्योंकि इसका स्लोप कम है। ठीक है, स्लोप कम क्यों है, y अपॉन में x करेंगे तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे कम है। ठीक है, y की वैल्यू तो उतनी है, x की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, तो y अपॉन में x होने से यहाँ पे ओवरऑल IF की वैल्यू कम है, शियर स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा होगी। सिमिलरली दूसरे में देखेंगे तो x की वैल्यू कम है, y की वैल्यू सेम है, तो इस कारण यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू कम होने से IF की वैल्यू बढ़ेगी। इस कारण मतलब लिक्विड लिमिट जो मेजरमेंट होता है ना, वो हमेशा लिक्विड लिमिट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द 1 पॉइंट मेथड एज डिस्कस बिलो। हम इसे 1 पॉइंट मेथड से भी मेज़र कर सकते हैं। एक रिसर्चर से उन्होंने कई तरह की सॉइल्स को लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करके एक पैरामीटर फिट करा है। तो उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपके पास केवल और केवल यदि नंबर ऑफ ब्लोज है ना, और यदि आपके पास नंबर ऑफ ब्लोज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, और यदि उस नंबर ऑफ ब्लोज पे यदि वाटर कंटेन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिक्विड लिमिट निकाल सकते हो उसकी डायरेक्टली। एक उन्होंने फार्मूला असाइन करा है। वैसे ये अथेंटिक नहीं है, जनरल प्रैक्टिस में हम इसे अवॉइड करते हैं, बट फिर भी आपके रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे x की वैल्यू 0.086 है, इसे आप नोट कर सकते हैं। एज ए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार अभी हमें समय का अभाव है और एक रेंडमली लिक्विड लिमिट पर्टिकुलर सॉइल की चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर पानी मिला करके उसका ब्लोज नोट कर लेंगे और उस पर हम रेंडमली चेक कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इसमें IF बोला हुआ है जी, हम इसे अभी छोड़ रहे हैं। इसकी एक मेथड और होती है, कौन पेनिट्रोमीटर मेथड। कौन पेनिट्रोमीटर मेथड में क्या होता है, सिमिलर टेस्ट होता है, सिमिलर टू कैसेग्रांडे अपरेटस, बट इसमें एक प्रोसीजर सेम है, बट इसमें जो इक्विपमेंट है वो डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, बेस होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, एक स्टैंड है, एक स्टैंड पे कैंप के थ्रू एक तरह की रोड अटैच होती है। जैसे आपने यदि सीमेंट की कंसिस्टेंसी के लिए कौन टेस्ट देखा होगा, उसकी लिमिट मेज़र करने के लिए जब हम परफॉर्म करते हैं, जनरली उसका सीमेंट की जो क्यूरिंग टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे जब हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि ये कितना इसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है, तो वहाँ पे आपने इस तरह के डिवाइस देखे होंगे। तो सेम उस तरह का ये डिवाइस है, यहाँ पे एक तरह का कोन अटैच होता है इसमें, ये कोन है, यहाँ पे ग्रेजुएटेड स्केल होती है। तो हमें क्या करना होता है कि एक सॉलिड सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर होता है, इस तरह से नीचे से बेस इसका होता है, ये ओपन होता है ऊपर से, टॉप से। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम मिट्टी को इस तरह से कॉम्पैक्ट कर देते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, हर बार हम पानी मिलाएंगे और इसको फिल करते जाएंगे। ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे उसका पेनिट्रेशन मेज़र कर लेंगे। हम इसको फ्री फॉल करा देंगे तो कितना पेनिट्रेट हुआ है इसमें, यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे। सेम चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बस अंतर ये है, जैसे उसमें हम 25 ब्लोज पे इसको देखते थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम पेनिट्रेशन 25 mm यदि हो जाता है, एक ऐसा वाटर कंटेंट जिस पे यदि हमें 25% पेनिट्रेशन अचीव हो जाता है, तो उसकी लिक्विड लिमिट होती है। हम कोन को रिलीज़ करने के लिए 30 सेकंड के लिए उसे छोड़ देंगे, 30 सेकंड तक वो जितना भी रिलीज़ हो रहा है हम उसे मेज़र कर लेंगे। और 8 वाटर कंटेंट एट विच दी सॉइल इज 25 mm पेनिट्रेशन, देन दिस इज कोरिलेटेड विद द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। जनरली ये कोर्सर सॉइल के लिए यूज़ होती है। कोर्सर सॉइल डेट मीन यदि कोई सॉइल सिल्टी नेचर की है, सिल्टी सैंड है या फिर सिल्टी थोड़ा उसमें सिल्ट कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्ले की साइज़ होती है 2 माइक्रोन और सिल्ट की साइज़ होती है 75 to 2 माइक्रोन, और सैंड की साइज़ होती है 75 to
75 टू 4.75। तो यदि कोई सॉइल है जिसमें कुछ 20-25% सैंड है, 30-40% सील्ड है, 10-15% क्ले है, इस तरह का कोई वेल ग्रेडेड सॉइल है, तो हम वहाँ पर कोन पेनेटोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये कैसे ग्रांडे से ज़्यादा इजी है, अप्लीकेबल वाइड रेंज ऑफ सॉइल, अलग अलग सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। चूँकि यदि we have to use Casa Grande apparatus only for the clayey soil. If we want to use the Casa Grande for coarser soil or just like the various wide range of the soil, so at that case when we place the soil, like you have the soil is a sandy or silty in nature, so due to the lack in cohesion, the soil is not stick on the surface of particular hollow cylinder which is used in the Casa Grande apparatus. So what happen when we continue our rotate our handle, so the soil is not when we cut the groove, the whole soil is come out from this particular tool, so it is very problematic situations, and at that time we don't judge the exact correct liquid limit of the soil. So at the meanwhile, this is the alternative of the liquid limit apparatus. So now we discuss about the plastic limit. So plastic limit क्या होती है? प्लास्टिक लिमिट को हम समझने के लिए, minimum water content as soil which the plastic stage is called, soil is in the plastic stage is called plastic limit water content. At plastic limit water content a soil is rolled into a thread of at least 3 mm which is start to crumble. क्या मतलब हुआ इसका? देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो डायग्राम था, मतलब प्लास्टिक स्टेज पे जो भी मिनिमम आपका वाटर कंटेंट होता है, प्लास्टिक स्टेज पे मिनिमम वाटर कंटेंट आपका WP है। यह प्लास्टिक स्टेज है, प्लास्टिक स्टेज में मैक्सिमम वाटर कंटेंट आपका लिक्विड लिमिट और मिनिमम वाटर कंटेंट है WP। तो प्लास्टिक स्टेज पे जो भी मिनिमम वाटर कंटेंट होता है वो होता है WP। इसका मतलब ये होता है कि प्लास्टिक स्टेज आपकी सॉइल प्लास्टिक स्टेट में आ गई है। प्लास्टिक स्टेट आपको पता ही है कि क्या होती है, ठीक है। देखिए इस ग्राफ से यदि हम समझें प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक का मतलब ये है कि आपका जो मटेरियल है कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग प्रॉपर्टी होगी, कहीं ना कहीं उसमें डक्टिलिटी टाइप की प्रॉपर्टी होगी। डेट मीन्स इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक रीजन में तो आपका मटेरियल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आप ये फर्स्ट फिगर देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। सेकंड में सेमी सॉलिड आ रहा है तो यहाँ पे कुछ समवॉट यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल होकर के थोड़ा सा ये बेंड होकर ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटलनेस है। थर्ड पे जाएंगे तो ये प्लास्टिक है, यहाँ तक तो इलास्टिक है और इसके बाद ये इस तरह से कांस्टेंट हो रहा है। और फोर्थ वाला तो कम्प्लीटली आप इसको कह सकते हो कि ये पूरा की पूरा ही डक्टाइल या इलास्टिक नेचर का हो रहा है, वो प्लास्टिक नेचर का हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग की कंडीशन हो रही है। तो प्योरली प्लास्टिक और देन लिक्विड लिमिट। लिक्विड स्टेट में क्या आता है, लिक्विड स्टेट में आपकी स्ट्रेन ही स्ट्रेन होती है। यदि आप शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो शियर स्ट्रेस आपकी ज़ीरो होती है, और शियर स्ट्रेस तो एक तरह से फ्रिक्शन स्ट्रेस होती है। यदि दो पार्टिकल्स के आपस में फ्रिक्शन है तो वहाँ पर शियर स्ट्रेस जनरेट होगी। बट इन केस ऑफ लिक्विड देर आर द नो शियर स्ट्रेस और नो फ्रिक्शन, सो ड्यू टू दैट दी व्हेन वी लोड applied on the soil, soil rolls, soil flow like a liquid, so there are only strain, okay। so प्लास्टिक लिमिट आपने समझा। प्लास्टिक लिमिट का मीनिंग ये हुआ कि प्लास्टिक लिमिट में जो मिनिमम वाटर कंटेंट है वो प्लास्टिक लिमिट होता है, प्लास्टिक स्टेज का वाटर कंटेंट। क्या होता है प्लास्टिक लिमिट में को हम इस तरह से भी मान सकते हैं कि हम सॉइल में जैसे ही पानी ऐड करते हैं, कम पानी ऐड करते हैं, वाटर का कोई इसमें हम वो नहीं रहता है सिग्निफिकेंस। तो जैसे सपोज हमने कुछ स्मॉल वाटर उसमें ऐड करा, तो वाटर ऐड करते ही उसमें क्या होगा कि सॉइल को हम जैसे रोल करेंगे, तो रोल करते हुए हम किसी ग्लास के ऊपर यदि हम हमारे फिंगर का यूज़ करते हुए यदि हम उसे रोल करते हैं तो वो 3 mm के थ्रेड्स में 3 mm के ऐसे छोटे छोटे थ्रेड्स बन जाएंगे। उसमें वो 3 mm उसका डायमीटर होगा और लेंथ उसकी कुछ 10-15 सेंटीमीटर के समथिंग हो सकती है। तो वो वहाँ पर ब्रेक होने लगेंगे और वहाँ पे वो क्रम्बल हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। तो 3 mm तक यदि कोई सॉइल रोल होते होते यदि कन्वर्ट हो जा रही है तो वो स्टेज उसकी कहलाती है प्लास्टिक लिमिट। इसके लिए हम कई तरह के ट्रायल करते हैं।
425 mm से हम जब सॉइल लेते हैं तो उसमें हम फिंगर से हम उसे सबसे पहले तो हम पानी मिला करके उसे नॉर्मल मिक्स कर लेते हैं। फिर उसमें से कोई भी एक, जस्ट लाइक हम जिस तरह से आटा मसते हैं और एक सैंपल ले करके उसके लिए रोटी के लिए जब हम एक सैंपल बनाते हैं, उसी तरीके से हमने सपोज़ एक तरह से सॉइल को पानी मिला करके एक तरह से हमने आटा टाइप उसे गूँथ लिया। वहाँ से हम एक छोटा सा सैंपल हमने एक्सट्रैक्ट करा, एक बॉल एक्सट्रैक्ट करी। उसे फिर हमने हार्ड सरफेस नीडिंग करते हुए फिर एक हार्ड सरफेस पे लाइक ग्लास का कोई कंटेनर या फिर कोई टेबल पे रख करके जहाँ पे उसमें स्टिकिंग कम हो, और उसे रोल करना चालू करते हैं फ्री हैंड से। ठीक है, रोल करते करते वही क्रम्बल होने लगेगा, और जिस पॉइंट पे वो 3 mm तक अप्रोक्सीमेटली यदि होने लगेगा तो वो वाटर कंटेंट जो है हमारा लिक्विड होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सॉरी, आपका जो प्लास्टिक स्टेज है उस पर आपके सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विड लिमिट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ओके। सो लास्ट वन, श्रिंकेज लिमिट को हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। इसमें कुछ छोटा सा रिलेशनशिप भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है। बाकी हम बस अभी ब्रीफ में इसको समझ लेते हैं कि श्रिंकेज लिमिट क्या होता है। जैसे कि नाम से आपको दिख रहा है श्रिंकेज मतलब कि पानी का सॉइल का श्रिंक होना। तो जैसे कुछ सॉइल होती है, जैसे हमारे रीजन में काली मिट्टी अवेलेबल है। काली मिट्टी क्या होती है, मोनमोरियोनाइट करके एक उसमें मिनरल होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मिनरल का नेचर क्या होता है कि पानी मिलते ही सॉइल को स्वेल कराए, मतलब उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कराए। आप देखेंगे कि बारिश में काली मिट्टी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है क्योंकि उसमें स्वेलिंग नेचर होता है, वो कुछ मात्रा में उसमें स्वेल होने लग जाता है। और यही हम गर्मी में देखेंगे तो बड़े बड़े क्रैक्स हमें मिट्टी में सरफेस में देखने को मिलेंगे। तो ये श्रिंकेज नेचर होता है। तो ये पर्टिकुलर टाइप की सॉइल में जिसमें मोनमोरियो नाम का एक मिनरल अवेलेबल होता है, उन सॉइल में ये प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसीलिए हमें श्रिंकेज लिमिट को मेज़र करना होता है। श्रिंकेज मतलब कितने लेवल तक, कितने कंटेंट तक सॉइल श्रिंकेज हो रही है। तो यदि हम उस फर्दर ग्राफ की बात करें, जिस ग्राफ से हम सारी डेफिनेशन को याद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो श्रिंकेज लिमिट क्या हुई, लोअर वाटर कंटेंट ऑफ सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है, या फिर मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ सॉलिड स्टेट एट विच फर्दर रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल डज नॉट चेंज, जो कि मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको समझाई थी। ठीक है, इससे कम यदि वाटर कंटेंट होने के बाद भी यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ना होगा, तो ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट सेमी सॉलिड के केस में या मिनिमम वाटर कंटेंट सेमी सॉलिड के केस में। तो ये तो एक इसकी रफ डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या है कि श्रिंकेज लिमिट जो होती है ना, श्रिंकेज लिमिट पे आपकी सॉइल जो होती है वो 100% सेचुरेटेड होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मिनिमम वाटर कंटेंट एज विल सॉइल इज सेचुरेटेड, मतलब सारे के सारे वॉइड्स आपके पानी से भरे हुए हैं, मतलब सारा वॉल्यूम जो है वो आपका पानी से भरा है। अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सॉइल यदि ड्राई है और सॉइल यदि पानी के साथ भी है तो दोनों सिचुएशन के में उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए इस ग्राफ से इसको समझिए, यदि ये सॉइल नेचुरल सॉइल है और ये ड्राइड सॉइल है, तो दोनों के केस में जो उसका टोटल वॉल्यूम है सॉइल का, मतलब ड्राई कंडीशन में भी जो वॉल्यूम है VS, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि एयर का वॉल्यूम भी इसमें रहेगा। नहीं, एयर का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन एयर उसमें रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ वॉल्यूम इसमें चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जैसे सॉइल है, ये एयर ड्राई होने के बाद, श्रिंकेज होने के बाद ये इस तरह से इतना श्रिंक होकर कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे श्रिंकेज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मिनिमम वाटर कंटेंट एज विद द सॉइल हैव द सेचुरेशन लिमिट। ठीक है, मतलब लिक्विड प्लास्टिक में तो सेचुरेशन होता ही होता है, श्रिंकेज लिमिट में भी सॉइल 100% सेचुरेटेड होती है। यदि इस तरह से यदि कोई कहे कि आपकी सॉइल श्रिंकेज लिमिट में है तो आप समझिए कि वो सेचुरेटेड कंडीशन में। ठीक है, या तो आपको एक फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान आ रहा होगा जो हमने डिस्कस करा था, ES इक्वल टू GW। ठीक है, वो वाइड रेशो, सेचुरेशन लिमिट, ग्रेविटी और वाटर कंटेंट। तो जैसा मैंने कहा कि हमें वाटर कंटेंट निकालना है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, तीनों के तीनों क्या है, वाटर कंटेंट है। तो यदि मैं कहूँ कि आपको यहाँ पे VS निकालना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे S की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो WS
विल बी इक्वल टू ई बाई जी। ये आपका सिंकेज लिमिट का एक रफ फार्मूला है, ठीक है। आगे भी कुछ डेरिवेशन है इसके, और इसकी कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। व्हेन द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड बिलो WS दिस पार्टिकल्स फ्लो क्लोजली स्पेस द वॉल्यूम रिडक्शन विल नॉट टेक प्लेस एंड द वाइड स्पेस स्टार्टेड गेटिंग ऑक्यूपाइड बाय द एयर इंस्टेड ऑफ वाटर। क्या मतलब हुआ कि जैसा कि मैंने कहा कि हम पानी कम करेंगे तो इतने पास पास होते हैं पार्टिकल्स की वॉल्यूम रिडक्शन नहीं होगा। वॉल्यूम रिडक्शन क्यों नहीं होगा? और जो भी वाइड स्पेसेस हैं वो क्या करेगी, वो हवा के द्वारा, एयर के द्वारा सारा के सारा पानी मेजर कर लेगी इंस्टेड ऑफ वाटर। जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा उतनी जगह आपकी एयर जो है यहाँ पे उसका प्लेस, उसकी जगह ऑब्जर्व कर लेगी, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये डेरिवेशन है एक छोटा सा, इसको हम बाद में देखेंगे या मैं फिर इसे आपको असाइनमेंट में दे दूंगा। इसका जो लास्ट फार्मूला है मैं आपको ब्रीफ में इसको समझा दूंगा कि क्या होता है। एक न्यूमेरिकल है, ओके। सो इसे हम यहीं एंड करते हैं अभी, ओके।